সময়টো অশান্ত হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত ৰাজনীতি অব্যাহত আছে। আজি লোকসভাৰ মজিয়াত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কৈছে যে 2024ত পুনৰবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ হ'ব। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে মণিপুৰক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাত মতা নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক লৈহে নৰেন্দ্ৰ মোদী বা বিজেপি ব্যস্ত হৈ আছে। 2024ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ জয় হ'ব বুলি কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে কৈছে আৰু বিজেপিৰ অহংকাৰৰ পতন হ'ব বুলি আজি অমিত শাহৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। আমি জনাইছো টাইমত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। 2024ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ জয় হ'ব, কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আজি এই মন্তব্য কৰিছে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে নিৰ্দাহৰণ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। মণিপুৰক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বক্তব্য দিয়াৰ বিপৰীতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক দুখ দিয়াতহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্যস্ত হৈ আছে। 2024ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে জয় লাভ কৰাটো সুনিশ্চিত বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰু কৈছে বিজেপিৰ অহংকাৰৰ পতন ঘটিব। আমি গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য দেখুৱাম, অমিত শাহৰ মন্তব্য দেখুৱাম। আজি গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে পূৰ্বে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হোৱাৰ পূৰ্বে NDA বৰ বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা নাছিল, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হৈছে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক ভয় খাই বিজেপিয়ে এতিয়া NDAৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। লোকসভাৰ মজিয়াত আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কৈছে 2024ত পুনৰবাৰ মোদী চৰকাৰ আহিব, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কৰি লাভ নাই, আৰু এই মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ গৌৰৱ গগৈৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে আজি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰু কৈছে যে 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে জয়লাভ কৰিব, তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এই কথা গম পোৱাৰ বাবেই নিদ্ৰাহৰণ হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ, যাৰ বাবে বাৰে বাৰে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক টাৰ্গেট কৰা হৈছে। গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰিছে মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নীৰৱে আছে, সদনত তেওঁ মন্তব্য দিয়া নাই, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সকে সমালোচনা কৰি আছে। 2024ৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অহংকাৰৰ পতন হ'ব, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে জয় লাভ কৰিব, এই দাবী উত্থাপন কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে, মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে। তেওঁ লগতে কৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হোৱাৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে NDAক বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, তেওঁলোকে সভাই অনুষ্ঠিত নকৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক ভয় খাই বিজেপিয়ে সঘনাই NDAৰ বৈঠক পাতিছে। আজি লোকসভাৰ মজিয়াত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছিলে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কৰি লাভ নাই, 2024ত বিজেপিয়ে পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব, নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ এইদৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে দিছে। আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য দেখুৱাই লৈছো, তাৰ পাছতেই অমিত শাহৰ মন্তব্য দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিম। जब से इंडिया अलायंस एकत्रित हुआ है, संगठित हुआ है, तब से बीजेपी नेताओं की नींद उड़ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी विफलताओं और मणिपुर के प्रति जिम्मेवारी भूलकर सब जगह इंडिया अलायंस को कोस रहे हैं और इंडिया जो हमारे देश का नाम है उसको भी मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमित शाह जी अपने डर को आज अपने वक्तव्य में प्रकाशित किया है। ये साफ साफ साबित करता है कि 2024 में हमारा देश जीतेगा, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और इनका अहंकार का पहाड़ अब धीरे धीरे टूटने लगा है। आज इंडिया अलायंस होने के बाद जो बीजेपी, जिसने पहले कार्यकाल में लगभग कभी NDA की बैठक ही नहीं बुलाई, हमारे इंडिया अलायंस संगठित होने के पश्चात उनको NDA की याद आई, और NDA में ऐसे ऐसे दलों की याद आए जिनसे वो शायद कभी ना मिले थे, ना मिलने की कोई उम्मीद रखे, और इसीलिए ऐसे ऐसे पार्टियों को बुलाया जिनका जमीन पर जिनका कोई स्थिति नहीं है। तो उनका डर, उनका भय, और आने वाले समय में इंडिया की जीत, भारत की जीत उनको दिखाई दे रही है, और वही बातें उन्होंने अपने भाषा में व्यक्त। जब से इंडिया अलायंस एकत्रित हुआ है, संगठित हुआ है, तब से बीजेपी नेताओं की नींद उड़ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी विफलताओं और मणिपुर के प्रति जिम्मेवारी भूलकर सब जगह इंडिया अलायंस को कोस रहे हैं और इंडिया जो हमारे देश का नाम है उसको भी मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमित शाह जी अपने डर को आज अपने वक्तव्य में प्रकाशित किया है। ये साफ साफ साबित करता है कि 2024 में हमारा देश जीतेगा, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और इनका अहंकार का पहाड़
अब धीरे धीरे टूटने लगा है। आज इंडिया अलायंस होने के बाद जो बीजेपी जिसने पहले कार्यकाल में लगभग कभी एनडीए की बैठक ही नहीं बुलाई, हमारे इंडिया अलायंस संगठित होने के पश्चात उनको एनडीए की याद आई और एनडीए में ऐसे ऐसे दलों की याद आए जिनसे वो शायद कभी ना मिले थे, ना मिलने की कोई उम्मीद रखे, और इसीलिए ऐसे ऐसे पार्टियों को बुलाया जिनका जमीन पर जिनका कोई स्थिति नहीं है। तो उनका डर, उनका भय और आने वाले समय में इंडिया की जीत, भारत की जीत उनको दिखाई दे रही है और वही बातें उन्होंने अपने भाषा में व्यक्त। जब से कि आप दिल्ली की सोचिए, एयरलाइंस की मत सोचिए, एयरलाइंस से फायदा नहीं होने वाला है। एयरलाइंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये एयरलाइंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। एयरलाइंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, एयरलाइंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को प्रछिन्न रूप से एलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो। पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। मान्यवर, मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल को। मेरा सभी से निवेदन है कि अलायंस के मद्देनजर इस पर अपना अभिप्राय न करें। देश के और राजधानी क्षेत्र के भले के लिए न्यूट्रलिटी से बात करें। और वैसे भी मैं बता देता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को, कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। तो जो सच है वो करिए। इतना अपील करके मेरी बात को समाप्त करें। जब से इंडिया अलायंस एकत्रित हुआ है, संगठित हुआ है, तब से बीजेपी नेताओं की नींद उड़ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी विफलताओं और मणिपुर के प्रति जिम्मेवारी भूलकर सब जगह इंडिया अलायंस को कोस रहे हैं और इंडिया जो हमारे देश का नाम है उसको भी मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमित शाह जी अपने डर को आज अपने वक्तव्य में प्रकाशित किया है। ये साफ साफ साबित करता है कि 2024 में हमारा देश जीतेगा, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा और इनका अहंकार का पहाड़ अब धीरे धीरे टूटने लगा है। आज इंडिया अलायंस होने के बाद जो बीजेपी जिसने पहले कार्यकाल में लगभग कभी एनडीए की बैठक ही नहीं बुलाई, हमारे इंडिया अलायंस संगठित होने के पश्चात उनको एनडीए की याद आई और एनडीए में ऐसे ऐसे दलों की याद आए जिनसे वो शायद कभी ना मिले थे, ना मिलने की कोई उम्मीद रखे, और इसीलिए ऐसे ऐसे पार्टियों को बुलाया जिनका जमीन पर जिनका कोई स्थिति नहीं है। तो उनका डर, उनका भय और आने वाले समय में इंडिया की जीत, भारत की जीत उनको दिखाई दे रही है और वही बातें उन्होंने अपने भाषा में व्यक्त। जब